Do you also feel that your vocabulary is weak and because of that you don't feel confident while speaking English? You know what you want to say but the word don't come out and slowly you start doubting yourself? If this sounds like you, then trust me, you are not alone. In this video, I want to share a very simple, practical, and stress free trick that will help you and improve your vocabulary at the same time build confidence while speaking English. So, let first of all, let me tell you one basic thing. First of all, let understand these things. Let understand one basic thing. Basic things. What is vocabulary? Vocabulary होता क्या है? जितना ज़्यादा दिमाग में प्रेशर लेते रहो ना, हमें इतनी वोकेबलरी याद होनी चाहिए होनी चाहिए होनी चाहिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. वोकेबलरी होता क्या है, सबसे पहले ये चीज़ समझो. वोकेबलरी सिंपली मीन्स वर्ड्स, शब्द. आपके पास जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो, इधर यू आर स्पीकिंग योर नेटिव लैंग्वेज, इधर यू आर स्पीकिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दिस हिंदी और इंग्लिश, उस भाषा को बोलने के लिए आपके पास कितने शब्द हैं उसे वोकेबलरी कहते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, इट इज़ द सेम थिंग्स दैट वी स्टडी इन आवर चाइल्डहुड. सिनोनियम्स, पर्यायवाची शब्द, सिमिलर वर्ड्स, डिफरेंट मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड, दैट इज vocabulary. Sorry. Now let me ask you something. From childhood till today, how many words of your Hindi or native language do you actually use or do you already know? If you think honestly, सच्ची बताना, it's hardly 200 to 300 words or more than 300 400 words, that is. And we have been using these same words again and again since childhood without any tension, without any stress. But when it comes to English, suddenly we all start feeling nervous, we all start feeling pressure. We think I should learn 100 words in a day, I should learn 10 new words every day, I should speak fluently immediately. And when we don't, we start feeling weak. We start feeling weak. We start questioning ourselves and demotivated. The problem is not English. The problem is how you are learning this language, how we are learning this language. Okay, now the biggest mistakes we made, the biggest mistakes people make in this, we are focusing on memorizing words. हम उस शब्द को याद करने की कोशिश करते हैं instead of using that word, but we do not focus on using that word more. What is the use of memorizing 10 or 100 words if you never use them in your real life? Your brain forget what you don't use. Therefore, instead of memorizing many words, focus on using just one word daily. Yes, one word is enough. And if you learn and use one word daily in 1 year, एक साल के अंदर you will have 365 words. And even if you remember and use only 150 words, मैं कहती हूँ कि अगर किसी ने एक दिन में एक वर्ड भी याद किया है तो एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं. 365 वर्ड्स में से अगर 365 वर्ड्स भी नहीं याद रहते हैं, 150 वर्ड्स भी याद रहते हैं, इफ़ यू रिमेंबर ओनली 150 वर्ड्स, दैट इज स्टिल अ वेरी बिग अचीवमेंट. English is not about perfection, it is all about progress. Now let me explain you with a very practical example. Okay, suppose कीजिए you want to learn a word attire, attire, attire. Okay, and you already know that attire means clothes or dress. सबको पता है, पर जब यूज़ करने की बात आती है तो हम भूल जाते हैं. दिस इज़ अ वेरी सिंपल और बेसिक एग्जाम्पल. आई नो आप लोगों को पता होगा, बट दिस इज़ एन एग्जाम्पल फ्रॉम विच आई वांट एक्सप्लेन दिस. ओके, नाउ if you want to learn this word attire, now don't write it 10 times, 100 times. Don't try to memorize it forcefully. Let them do naturally. Instead doing this, think of your favorite dress. Create a clear image of that particular dress in your head, in your mind. Now connect the word with the dress. Okay, जो भी आपकी favorite dress है, ठीक है, जो भी आपका फेवरेट अटायर है, जो भी आपकी फेवरेट ड्रेस है, उस ड्रेस को उसको अपना माइंड में एक इमेज दे दो. एंड व्हेन एवरी टाइम यू वेयर द ड्रेस और ओपन योर अलमीरा एंड सी इट, से दिस सेंटेंस अलाउड.
दिस इज़ माई फेवरेट अटायर इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस इज़ माई फेवरेट ड्रेस। आपको कभी नहीं बोलना। आपने आपको उस ड्रेस में खुद को मिरर पे देख रहे हो तो ये नहीं बोलना दिस इज़ माई फेवरेट अटायर, सॉरी दिस इज़ माई फेवरेट ड्रेस। यू हैव टू स्पीक दिस इज़ माई फेवरेट अटायर। व्हेन अ वर्ड इज कनेक्ट, ऐसे क्यों होता है ऐसा क्यों होता है जानते हो? व्हेन अ वर्ड इज कनेक्टेड विद एन इमेज, एन एक्शन, एंड रिपीटिशन एंड मेमोरी, you will never forget that word because your brain remember images better than text. Now let me tell you something very important. Learning English is not about vocabulary, it's all about our mental strength. ओके, इससे पहले मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू लर्न 3 न्यू वर्ड्स ऑफ एनी पर्टिकुलर वर्ड, जैसे कि टेस्टी। टेस्टी का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। ओके, अब इस टेस्टी के हमें 3 नए वर्ड्स लर्न करने हैं। फॉर एग्जांपल, टेस्टी, डिलीशियस एंड माउथ वाटरिंग। ओके, नाउ हमें टेस्टी तो सबको याद रहता है और हम सोचते हैं कि अब टेस्टी से ज़्यादा अगर मैं बोलना कि कोई चीज़ स्वादिष्ट से भी ऊपर है तो हम बोलेंगे वेरी टेस्टी। नो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेरी टेस्टी हम लोगों को डिलीशियस बोलना चाहिए। ओके, सो इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन करेंगे कि वो टेस्टी ना बोले या वेरी टेस्टी ना बोले, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टेस्टी हम डिलीशियस बोलें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप अपनी कोई 3 डिशेस ले लीजिए, ठीक है, जो आपको पसंद हो, या फिर आपकी मदर कोई भी ऐसी 3 डिशेस जो वो बनाती हों। तो एक डिश वो बनाती है जो अच्छी होती है तो उसको आप रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो वो हो गया टेस्टी। उसके ऊपर सपोज कीजिए आपकी मदर, इट्स विंटर, तो मैं एक हलवे का एग्जांपल लेती हूँ, हलवा। सो द मीनिंग ऑफ हलवा इन इंग्लिश इज ऑल्सो हलवा बिकॉज इट्स अ ट्रेडिशन फूड। ओके, सो हाँ, कहाँ पे थे, इस पे हलवा का एग्जांपल ले रहे थे, राइट। सो अब फॉर एग्जांपल आपकी मदर हलवा बनाती है, एक सिंपल हलवा जो होता है सूजी वाला, वो उसको बोलेंगे टेस्टी, कि आपकी मदर वो वाला हलवा टेस्टी बनाती हैं। उसके बाद वो कोई दूसरा डिश है अपार्ट फ्रॉम दिस दिस सूजी वाला हलवा, वो उनका जो दूसरा वाला डिश है मूंग दाल का हलवा, वो उसको उससे बेटर बनाते हैं, तो दैट डिश इज़ डिलीशियस। ओके, डिलीशियस। और उसके ऊपर एक डिश है जो गाजर का हलवा। ओके, दिस जस्ट एन एग्जांपल। उस डिश को वो एकदम मस्त बनाती है, उसमें देख के मतलब मुंह में पानी आ जाता है, तो दैट डिश इज़ माउथ वाटरिंग डिश, ठीक है। इस तरीके से अब आपने अपने माइंड को एक इमेज दे दी है। ये जस्ट इट्स जस्ट एन एग्जांपल। आप इंस्टेड ऑफ वो वाला मदर के एग्जांपल लेके आप अपना भी कोई ऐसे डिश है कि आपको कोई टेस्टी लगती है, कोई बहुत टेस्टी लगती है, उसको डिलीशियस और जिसको देख के मुंह में पानी आ जाता है, दैट इज़ माउथ वाटरिंग डिश। ओके, सो इसलिए ये सब चीज़ होती है क्योंकि हमारा जो माइंड है हमें उसको ट्रेन करना होता है। तो हम ज़्यादा वर्ड्स पे ध्यान देते, मतलब ज़्यादा वर्ड्स पे हम याद करेंगे, उस पे ध्यान नहीं देना है। इंस्टेड हमें उस पे ध्यान देना है कि हमने एक वर्ड, एक दिन के अंदर एक वर्ड याद किया है और वो वर्ड का इमेज हमने अपने माइंड को दिया है। अब हमारा माइंड वो इमेज कभी नहीं भूलेगा। ओके, सो most important thing is, let me tell you, something is very important which I already told you, that is mental strength. Okay, so you will forget word, you'll make mistake, you will feel slow, and that's normal. भूल गए तो क्या हो गया, normal. Mental strength help you continue even when you feel embarrassed. It teaches you to say, I am learning, I will not quit. Okay, and remember this point. You don't lack intelligence, you don't lack vocabulary, you only lack patience and self belief. Stop pressurizing yourself, stop comparing yourself with others, stop, speak slowly, use one word daily and trust the process because it's natural process. ये आपको खुद से आएगा, because one word used daily is important and more powerful than the 10 words memorized or forget, the 100 words memorized or forget. You are capable, you are improving, and you are doing great. So this is all about this video. If you like this video, please subscribe and mention in the comment. If you like this trick, also mention in the comment. And if you want videos in another topic, please also let me know. Thanks for watching. Take care, you and your family.